السلام علیکم دوستوں، قسط نمبر 11 پیش خدمت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید گٹار کی سٹرنگ کو چھو کر انہیں محسوس کرتی، کیونکہ بچپن سے اس کا شوق سا دونوں کے ساتھ کھیلنا، وہ اپنے ہاتھ نہیں روک پاتی تھی۔ گٹار اور اس کا رشتہ ہی ایسا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے دور رہ نہیں پاتے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، وہ شان سے چلتا کمرے میں داخل ہوا تھا، کاندھوں پر لٹکتی شال کھینچ کر صوفے پر پھینکی تھی، پاؤں سے چپل کو بے دردی سے اتار کر الگ کیا تھا، گھنے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے وہ بیڈ پر گرا تھا۔ پھر کمرے میں گلاب کی خوشبو محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ سانس روکے گٹار کے پاس بیٹھی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کو اپنے گٹار کے پاس بیٹھا دیکھتے اس کے سر پر پہنچتی اس نے کہا تھا، اٹھو، میں نے کہا کہ اٹھو، اگر میں نے اٹھایا نا تو پھر تمہارا بازو تمہارے جسم کے ساتھ نہیں رہے گا، گاٹ اٹ۔ تیش میں آتے اس نے کہا تھا۔ وہ کانپتے جسم کے ساتھ اٹھی تھی۔ نکلو ابھی کے بھی میرے کمرے سے باہر۔ اس نے انگلی اٹھا کر اس کو باہر کے دروازے کی راہ دکھاتے کہا تھا، میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے برائی آواز میں کہا تھا۔ وہ اس کے غصے کے لیے تیار تھی، مگر اس کے غصے کو برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت وہ چاہ کر بھی خود میں پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہو۔ اب پر اس نے قدم اس کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ بھی نفی میں گردن ہلاتی قدم پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ سٹاپ! اس کے بڑھتے قدم دیکھتے کہا تھا عائشہ نے، مگر وہ پھر بھی قدم پیچھے لینے لگی تھی۔ آئی سیڈ سٹاپ اٹ! آپ کے وہ پورے زور سے چلایا تھا کہ گھڑیا کا رنگ فاق ہوا تھا، حلق سے ہچکی نکلی تھی اور کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ اب کی بار اس نے قدم پیچھے نہیں لیے تھے، کسی پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ تیر کی تیزی کی طرح اس تک پہنچا تھا۔ منع کیا تھا نا بار بار میں نے کہ میرے سامنے مت نہ، پھر بھی تم آئی اور پھر سامنے کیا میری زندگی میں میرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی دبوچتے کہا تھا۔ اس کی پکڑ شدید تھی، گھالی کی نازک کلائی نوحق نہ ہوئی تھی اپنی حالت پر۔ بولو چپ کیوں ہو؟ کیوں نکاح کی ہمیں بھری تم نے؟ جانتی تھی نا کہ میں اپنے بھائی کو انکار نہیں کر سکتا، تم نے ان کا سہارا لیا اور اب کی کیا پلان ہے بولو۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پیچھے کی طرف دھکا دیتے کہا تھا۔ اس کا دوپٹہ نیچے گر گیا اور وہ دیوار کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ دبی دبی سی چیخ منہ سے نکلی تھی، خبردار جو ایک بھی آنسو نکلا تمہارا پاگل ہوں جو بکواس کر رہا ہوں۔ اس کی تھوڑی پر موجود گڑھے سے نظریں چلاتے اس نے کہا تھا۔ اس کی برائی آنکھیں اسے بے چین کرنے کے لیے کافی تھیں، اوپر سے تھوڑی کا گڑھا۔ اس نے اپنے اعصاب کو ذیل نہیں ہونے دیا تھا۔ گلاب کی خوشبو ابھی تک اس کے نظروں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں گجرے اب بھی موجود تھے۔ اور یہ کس سے پوچھ کر پہنے تم نے؟ ہاں، مجھے رجانا چاہتی ہو؟ اس نے اس کی دونوں کلائیں پکڑ کر سامنے کرتے کہا تھا اور پھر بڑی بے دردی سے اس کی کلائیوں سے گجرے نوچ کر پھینکے تھے۔ پھولوں کی پتیاں دونوں کے پاؤں پر گرتی اپنی بے قدری کھو رہی تھیں۔ دونوں کے سفید پاؤں پھولوں کی پتیوں سے ڈھک چکے تھے۔ اگر وہ دھان پان سی نازک سی مومی گڑیا تھی تو وہ کسی ریاست کا اناپ پرست شہزادہ تھا جو ہاتھ لگانے سے میلا ہو جائے۔ لاڈوں میں پلا خوبصورت نک چڑھا شہزادہ جس کی پرسنالٹی، روح، دبدبا، غصہ سب کچھ معاف تھا۔ میں نے نہیں، اربد نے لا کر دیے، وہ کہہ رہے تھے عائشہ کے فیورٹ ہیں، پہن لو۔ اس نے نیچے پڑے پتیوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں فیورٹ تھے، مگر اب تمہیں پہنے دیکھ لیے تو نفرت ہوگی ان سے۔ آج کی بات میرے کمرے میں مجھے گلاب کی خوشبو نہ آئے، سنا تم نے؟ کہتے اس نے گجروں کی وائر بھی بے دردی سے کھینچی تھی کہ دونوں کلائیوں میں وائر بورزرا لگی تھی اور خون رسنے لگا تھا۔ ویلکم ان مائی لائف، ہر قدم پر یہاں تم مجھ سے جڑ کر تکلیف پہنچے گی، سنا تم نے؟ اس نے اس کے ہاتھوں سے رشتے خون کو دیکھتے کہا تھا۔ وہ جو نیچے دیکھ رہی تھی، ایک بار اس نے اس کو دونوں کاندھوں کو پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ سنا تم نے؟ پھر سے پوچھا تھا۔ جی۔ اس نے بازو سے رشتے خون کو ہاتھ سے صاف کرتے کہا تھا۔ اشل نے اس کے ہاتھوں سے رشتے خون کو صاف کرتے اسے دیکھا تھا۔ وہ بہت کمزور تھی، سفید شرٹ میں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، کھلی شلوار پہنے، سفید رنگت بال کیچر میں بندھے تھے، پھر بھی کچھ لٹیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ دوپٹہ کھینچے تن میں دور جا گرا تھا، گردن پر ابھرے بیوٹی بون لائٹ پڑنے کی سے چمک رہی تھی۔ اس کے نئے نقش بہت خوبصورت تھے، آنکھیں بڑی بڑی تھیں جبکہ رونے کی سی کاجل ارد گرد پھیل چکا تھا، گھنی پلکیں موڑی ہوئی تھی اور گیلی تھیں۔ اگر وہ قاتلہ نہ ہوتی تو آج کی رات ان دونوں کے درمیان مختلف ہوتی۔ وہ اس میں کھو کر اسے دیکھنے لگا تھا بڑی محویت سے، اور وہ اپنے ہاتھوں پر ہوتی جلن کو برداشت کرتی بار بار اپنی خراش پر ہاتھ پھیری تھی۔ اچانک اسے اس کے ہاتھ پر عالم کا ہاتھ نظر آیا تھا۔ غصہ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں میں امڑ آیا تھا۔
गाली ने उसकी इतनी देर खामोश होने पर उसकी तरफ देखा था और फिर उसे अपने हाथ की तरफ देखते पाया था और उसकी आंखों में गुस्सा देखते उसे अपने हाथों के टूटने का अंदेशा हुआ था। इस डर से उसने अपने हाथ अपनी कमर के पीछे बांधे थे कि कहीं वो गुस्से में आकर तोड़ ही ना दे। निकालो बाहर। अशल ने दीवार की एक साइड पर गुस्से से हाथ मारते कहा था, नहीं अशल, बहुत दर्द होता है, प्लीज़। उसने नफी में गर्दन हिलाते कहा था। जब भी अशल ने उसकी कमर के पीछे हाथ ले जाते उसका हाथ खींचकर पकड़ा था। बहुत शौक है तुम्हें दूसरों के सामने खुद को कमज़ोर दिखाने का, ड्रामा लगाने का, रहम दिली हासिल करने का। मेरा भाई तुमसे हमदर्दी करता है कि मुझे कबूल है उसका हर कदम, सर आंखों पर, मगर आलम ने किस हैसियत से उस हाथ पर हाथ रखा। अशल ने उसके हाथ की उंगली पर अपने हाथ की उंगलियां फंसाते कहा था। वो उसकी उंगली को मसल देना चाहता था मगर उसके नाजुक लंबी लंबी उंगलियों का लमस अब उसे किसी भी सख्त अमल के लिए रोक रहा था। हाथ से हाथ लग गया उसका। सांस ले लूँ जरा, बताता हूँ। अशल की उंगलियों का लमस नरम हुआ था। उसने शायद पहली बार किसी की इतनी नरम रुई जैसी उंगलियों का लमस महसूस किया था। मैंने जानबूझकर नहीं किया कुछ भी, प्लीज़ अशल। मैं अब आलम के पास भी नहीं जाऊँगी, मैं उससे बात भी नहीं करूँगी, मुझे जाने दो, मैं मफाते के पास चली जाऊँगी, प्लीज़। कहते गाली ने हिम्मत करके उसके हाथ की नरमी महसूस करते अपना हाथ उसकी उंगलियों से खींचा था और दरवाजे की जानिब भागी थी मगर वो बिजली की तेजी के साथ उस तक पहुंचा था और उसे खींचकर दरवाजे के साथ मौजूद दीवार के साथ पिन किया था। हिम्मत कैसी हुई मुझसे अपना हाथ छुड़वाने की। दीवार पर अपना हाथ गुस्से से मारते उसने उस कमरे के दर दीवार हिला दिए थे। नहीं, उसके चीखने की आवाज़ पर गाली ने कानों पर हाथ रखते सख्ती से आंखें बंद की थी। बंद आंखों के साथ पलकें लर्ज रही थी। अशल की नज़र एक बार फिर भटक कर उसकी आंसू से तर गर्दन पर पड़ी थी। अब की बार देखने पर ब्यूटी बहुत ज़्यादा चमक रही थी। उसने सामने लगी लाइट को भी गुस्से से घूरा था जैसे आंखों से ही लाइट तोड़ देगा। फिर गाली के सर के ऊपर दीवार से लगे स्विच बोर्ड पर हाथ रखकर लाइट के बटन को बंद किया था और मध्यम लाइट्स ऑन की थी। कमरे में अंधेरा होती गाली ने आंखें खोली थी। उसने बेयकीनी से अशल की तरफ देखा था कि वो सच में उसके हाथ तोड़ने वाला था। प्लीज़ अशल, मैं किसी को खुद को हाथ नहीं लगाने दूंगी, मैं किसी से बात नहीं करूँगी सिवाय आलम और अशल के, प्लीज़ मुझे जाने। चुप, एकदम चुप। उसने उसके कांपते होंठों पर शहादत की उंगली रखी थी। नाजुक लबों की नरमाहट का लमस उंगली पर महसूस करते अशल ने एक पल को आंखें बंद की थी। इस लम्स में उसको सुकून मिला था, वो सुकून जो शायद उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसको जन एक लम्हे के लिए सही पुरसुकून हुआ था। अशल, मैं सही। उसके लब उसकी उंगली के नीचे हिले थे। शश, चुप, एकदम चुप, कहते उसकी ब्यूटी बोन पर नजरें गाड़े उस पर धीरे धीरे झुकने लगा। गालियाँ फटी फटी नजर से उसका होद पर झुका हुआ देख रही थी। उसका एक हाथ उसके होंठों पर था और दूसरा दीवार पर था। गर्दन से होती आंसू की लकीर ब्यूटी बोन पर गिरती और वो शबनम के कतरे की तरह चमकने लगी थी। अशल सफी ने इससे खूबसूरत मंजर शायद ही कभी देखा हो। सामने नाजुक सी डरपोक जख्मों से चूर खड़ी सफ़ेद परी अपने होश रुबा हुस्न को बखेरे उसे अपने साथ बेईमान करने पर उकसा रही थी। अशल आहिस्ता आहिस्ता अपने मतलूबा हदफ पर झोंक रहा था। उसकी नरम गरम सांसें घालिया के पूर को झुलसा रही थी। अशल ने झुक कर नरमी से लब रखे थे उसकी ब्यूटी बोन पर। उसके लबों को छूने से उसकी रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। उसके लमस में नरमी थी, किसी बेलगाम घोड़े की तरह। गाली के दिल ने बेजोर धड़कना दौड़ना शुरू कर दिया। उसके होंठ पल भर में खुश्क हुए थे। गली की हड्डी डूब कर उभरी थी। वो कमरा जिसमें कुछ देर पहले नफरत के बादल बरस रहे थे, अशल का गुस्सा किसी तूफान की तरह कहर ढा रहा था। इस कमरे में पुरसुकून खामोशी छा गई। अशल ने उसकी ब्यूटी बोन पर ठहरे खारे आंसू को लबों से नरमी से चूना था। मुंह में नमकीन पानी को महसूस करते अशल ने आंखें बंद की थी। उसका जहन पुरसुकून होने लगा था। अंदर उठते शोर को जैसे सुकून मिल गया और ये गालिया के बेगुनाह आंसू को दिया जाने वाला पहला खराज था जो उसे उसके श्वार से मिला था। उसकी सांसों में तपिश थी। गाली को अपने पाँव पर खड़े होना महाल लगा था, इसलिए सूखे होंठों पर जबान फिर थी। अशल की उंगलियां उसके होंठों से हिली थी। तलसम टूटा था। गहरी आंखों ने गुस्से से गाली की आंखों में झांका था जैसे ये डिस्टर्बेंस पसंद न आई हो, इसलिए उसी हाथ को दूसरी साइड रखते ब्यूटी बोन पर एक पुरशिद्दत सा लम्हा छोड़ते बाइट की थी। गले के होंठों से सिसकी निकली। वो करहा उठी थी मगर वो राह फरार नहीं था। उसके पास ब्यूटी बोन से रिश्ती खून की बूंद को लबों पर चूमते उसने उसके गर्दन पर नाक रेब की थी। आलम नहीं, आलम भाई, अरबद नहीं, अरबद भाई। उसकी गर्दन में सांस लेते उसने कहा था। उसके लहजे में वाज़ेह तंबीह थी। और आज के बाद तो मुझे किसी भी गैर मर्द से 1 इंच भी टच होती नजर आई तो वो रात तुम्हारे क़यामत की रात होगी। ये सज़ा जो अभी यहाँ दी ये तो कुछ भी नहीं।
उसने उसकी बूटी बोन के जख्म पर लाभ रखते कहा था, जबकि अब घालिया की हिम्मत खत्म हुई थी। वो कौन सा नशा उसके नस में भर रहा था? ये कैसा एहसास था, ये कैसा लम्हा था जो उसे हर गुजरते पल के साथ कमज़ोर कर रहा था? वो क्यों उसके इतने करीब आ रहा था? गाली ने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे धक्का दिया था और साइड से निकलने लगी थी कि उसने फिर से उसे बाजू से दबोचे था और उसका मुंह दीवार की तरफ करके उसकी कमर अपने सीने के साथ लगाकर उसके पेट पर हाथ रखते उसे खुद में दबोचा था। वो उसकी बेजा गिरफ्त में से निकलने की कोशिश में किसी चिड़िया की तरफ फड़फड़ाई थी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी मुझे खुद से दूर करने की। उसका दूर जाना अशल के असाब शाल कर गए थे। गाली का मुंह दीवार की तरफ था। जब उसने उसका मुंह मजीद दीवार की तरफ लगाते उसके दाएं बाएं हाथ रखते उसके बालों में से कैचर निकाल कर दूर फेंकी थी। अगर उसका करीब आना उसके आसाब को सुकून दे रहा तो वो कुछ देर उससे सुकून चाहता था। 2 दिन से चलने वाले तूफान ने दिमाग को हिला डाला था, जो अब उसकी कुर्बत में पुरसकून हो रहा था। उसके लंबे बाल किसी आब शार्क था उसकी कमर पर बिखरे थे, जिन्हें आयशा ने हाथ से पकड़कर दूसरे कंधे पर डाला था। गर्दन पर दाएं हाथ की उंगली से व्यूज बनाते वो घाले को कांपने पर मजबूर कर गया। अशल प्लीज मुझे जाने दे, डोंट डिस्टर्ब मी, कहती उसने उसके कान के पुष्प पर नाक रगड़ते गहरे सांस लिए थे। वही खुशबू जो उसने इस दिन अपने पास महसूस की थी, वही खुशबू जो किसी भी औरत के वजूद की अपनी अलग खुशबू होती है। इस खुशबू ने अशल सफ़ीर को चारों खाने चित कर दिया था। गालिया का दिल उछल पड़ा था। नाक से गहरे सांस लेता वो कान के लौ तक आया था। लबों से कान के लौ को नरमी से छूता वो दांतों से धीरे धीरे उसके कान के लौ को कुचलने लगा था। गालिया बिन पानी की मछली की तरह तड़पी थी, कमर बुरी तरह से दर्द कर रही थी उसकी। और अब वो उसे अपने गुस्से से नहीं, अपने लफ्ज़ों से नहीं, अपनी कुर्बा से मार रहा था, जो कि उसके गुस्से से भी ज़्यादा जानलेवा थी, जिसमें गालिया उसके हर जुलसते सांस के साथ तड़पती थी। वो उसकी नसों में अपनी कुर्बत का नशा बहा रहा था, जो कि किसी भी नशे से ज़्यादा जानलेवा था। अशल प्लीज़ मेरी कमर टूट जाएगी, बहुत दर्द हो रहा है। गालिया उसके दोनों बाजुओं पर हाथ रखते उसके बंद को तोड़ने की कोशिश करते कहा था, जबकि अब वो अपने एक हाथ की उंगलियों में उसके हाथ की उंगलियां फंसा कर उसके हाथ को लाग कर चुका था और दूसरे हाथ से उसने उसकी शर्ट के पीछे लगी जिप पर उंगली रखी थी। नहीं अशल प्लीज़ ये जुल्म मत करें, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, मुझे मेरी नज़रों में मत गिराएं। शर्ट की जिप बंद नीचे होती महसूस करके उसकी जान लबों पर आई थी। बहुत कुछ गलत होने की इर्द गिर्द घंटियाँ बजने लगी थी। क्या वो इस सब की इसे इतनी बड़ी सजा देने वाला था? क्या वो उसे उसकी मोहब्बत के सामने रुसवा कर देगा? क्या वो ज़िंदगी में कभी खुद से ये कह पाएगी कि उसने अशल सफ़ीर से मोहब्बत की थी? उसका दिल डूबने लगा था। अशल कांधों से सिरकाते सफ़ेद मेरी कमर को देखा था। वो अंदाज़ा नहीं लगा पाया था कि शर्ट का रंग ज़्यादा सफ़ेद है उसकी कमर का, मगर नज़र उसकी कमर पर बने नीले खून जमे जख्मों पर गई तो उसके जहन में जुमाका हुआ था। आसन सर की काल आई थी। कोई लेडी है, उनकी कमर इंजर्ड है। क्या वो डॉक्टर घाले की कमर देखकर उसकी बैंडेज करता? ये हुस्न तो किसी का भी ईमान डगमगा सकता था। उसकी आंखों में एक पल के गुस्सा आया था, मगर फिर उसके एक एक जख्म को उसने अपनी उंगली के पूरों से छुआ था। गाली की शर्ट कांधों से ढलक चुकी थी, जबकि कमर के जख्मों पर उसकी उंगलियों के पूरों का लमस उसकी सिसकियाँ निकाल रहे थे। मुंह जोर होते जज्बों की परवाह करते उसने झुककर पूरी शिद्दत से उसके जख्मों पर लब रखे थे। गालिया की हिचकी निकली थी। ये वही जख्म थे जो उसने उसे दिए थे। वो अपने दिए जख्मों पर शर्मिंदा हुआ था। कितना दर्द दिया था ना उसने उस मोमी गुड़िया को। अशल नहीं जानता था कब उसकी आंखों के कोने पर एक आंसू आकर ठहरा था। उसके लबों के लम्हा से गालियाँ तड़प उठी थी और अब की बार वो हिचकियों से रोने लगी थी। कमरे में अजीब तरह का रक्स पैदा हुआ गया। गालिया की हिचकियों और अशल की भारी सांसों का। जब उसके कानों में गालिया की हिचकियों की आवाज़ पड़ी, उसने उसकी उंगली पर गिरफ्त ढीली की थी। गालिया उसकी पकड़ में एक बार फिर से नरमी महसूस करते अपना रुख मोड़ा था और अशल के सीने में छुप कर हिचकियों से रोने लगी थी। उसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़े अशल ने उसके माथे पर लाभ रखे। दूसरे हाथ से उसकी शर्ट कांधों से ठीक करते से बंद की थी। शश पेन हो रहा है। उसने गालिया के चेहरे को दोनों हाथों का प्याला बनाते उसमें लेते उसकी गहरी आंखों में झांकते पूछा था। बदले में लबों पर जबान फिरती निचले लाभ को दांतों तले कुचलती। गालिया इस बात में सर हिला गई थी। उसके होंठ लहू छिलकाने वाले हो रहे। गुलाबी होंठों को अशल ने बड़ी बेकरारी से देखा था, फिर फासले मिटाता उसके लबों पर झुका था। उसकी डूबती उभरती मासूम होती सांसों में सांस लेते वो लम्हों की गिरफ्त में गिरफ्तार हो चुका था। गाली के नथनों से अशल की सांसों की खुशबू टकरा रही थी। इस अचानक हमले से वो नीचे गिर जाती। अगर अशल का हाथ उसकी कमर पर बर वक्त ना आता तो वो गिर जाती। पहले उसके लमस में नरमी थी और फिर वो उसकी सांसों पर शिद्दत लौटाने लगा था।
और घालिया की सांसों को डोर टूटने लगी थी। उसकी शर्ट पर मौजूद घालिया के हाथों की गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगी थी और फिर उसके हाथ ढलक गए थे। अशल ने उसके ढलके वजूद को देखा था, नरमी से उसके लबों पर लाभ रखते पीछे हुआ था। उसके बेहोश वजूद को बाहों में उठाए बेड पर लिटाया था। वो जानता था कि उसकी शिद्दत सह नहीं पाई और अगर वो बेहोश न होती तो वो शायद हर हद पार कर जाता। उसने उसके गीले लबों की तरफ देखते अंगूठे से उसके लबों की नमी साफ की थी। वो लड़की क्यों उसके सुकून का बायस बनी थी ये वो खुद भी नहीं जानता था। वो किसी सज़ा की घर से उसके करीब नहीं गया था, उसे उसके दिल ने उकसाया था, इसलिए वो उसके करीब तर होता गया और उसकी कुर्बत उसे पुरसकून करती गई। उसके बेहोश वजूद को देखते उसने दिल की सुनते दराज में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और बारी बारी उसके चेहरे से लेकर कमर के हर जख्म पर उसने बैंडेज की थी। वो बहुत नरमी से उसके हर जख्म पर मरहम लगा रहा था, जैसे वो मोमी गुड़िया उसके सख्त हाथों से टूट न जाए। बैंडेज करने के बाद वो भी उसके साथ लेट गया और उसे खुद के करीब किया था। घालिया के होश बेदार होने लगे थे मगर उसने आंखें नहीं खोली थी। उसे महसूस हो रही थी अशल की उंगलियां अपने सर की सतह पर बालों में चलती और अपना सर अशल के सीने पर रफ्ता रफ्ता उसकी आंखें फिर से बंद होने लगी। उसकी उंगलियों को लम्हा से वो नींद की गहराइयों में उतरने लगी थी। अशल सामने लगी LED को घूरे जा रहा था। वो पिछले कुछ मिनटों में क्या से क्या कर चुका था। वो लड़की जो उसकी भाभी की कातला थी, जिसको उसके भाई ने उसकी बीवी बनाया था और जिससे वो शदीद नफरत करता था, कैसे वो उससे सुकून महसूस कर सकता, कैसे उसके इतने करीब जा सकता। वो खुद को गुस्से की भट्टी में झोंकना चाहता था, वो उसके पास से उठकर चले जाना चाहता था मगर वो ऐसा नहीं कर पाया। उसने आंखें बंद की थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सांसें भारी होने लगी। दोनों एक तकलीफ देह दिन उसकी थकन के बाद गहरी नींद सो चुके थे, एक दूसरे की सांसों के बहुत करीब। मुफातिया का सांस बंद होने लगा। वो दूसरे हाथ से उसका बाजू हटाने की कोशिश करने लगी मगर सामने वाले की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मुफातिया ने महसूस किया कि वो उसके कान के पास झुका था। नेक्स्ट इज यू, भारी वहशतज़दा सी आवाज़ उसके कानों से टकराई थी और अगले ही लम्हे वो बेड पर गिरी थी, होशो हवा से बेगाना होकर। हरी आंखें मुस्कुराई थी और उसके बेहोश वजूद को छोड़कर लाइट जलाती चली गई। ठीक 5 मिनट बाद मुफातिया चकराते सर को पकड़ते उठकर बैठी। उसे याद था जब वो वॉशरूम से बाहर निकली थी तो लाइट ऑफ थी, फिर अब कमरे की लाइट जलने लगी थी। नेक्स्ट इज यू, भारी वहशतज़दा आवाज़ उसमें खौफ भर रही थी। आंखें आंसू से चमकने लगी थी। उसे शदीद खौफ महसूस हुआ। जब ही दरवाज़ा नॉक हुआ उसने दरवाजे की तरफ देखा था। कौन? उसने खौफ के मारे पूछा था। आसन, सर ने खाना भिजवाया, मैडम खा लीजिएगा। मुलाजिम ने नाप घुमाते कमरे का दरवाज़ा खुला था और खाना टेबल पर रखा था। ठीक है, थैंक यू। वो फीका सा मुस्कुराई थी, फिर ड्रेसिंग की तरफ जाकर कैचर उठाने लगी थी कि कोई तीसरे कमरे में दाखिल हुआ। उसका कैचर पकड़ता था वहीं रुका था। अरबाज दरवाज़ा बंद करते उसकी तरफ बढ़ा था। क्यों आए हो यहाँ और दरवाज़ा क्यों लॉक किया? देखो तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मैं सब चीख कर शट अप, जस्ट शट अप। हर किसी को अपने जैसा मत समझा करो। आई बात समझ में। अरबाज बिजली की तेज़ी उस तक पहुँचा था और उसकी बात काटते हुए चिल्लाया था उस पर। फिर उसका हाथ पड़ा था। अरबाज, मुफातिया ने फटी फटी नज़रों से अपनी जख्मी कलाई उसके हाथ में देखी थी। शश कहते उसने दूसरे हाथ में पकड़ी असाइनमेंट का ढक्कन खोलकर उसे उसकी कलाई पर लगाया था। छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी, मैंने कहा था। हाथ जस्ट शट अप। अब अगर आवाज़ आई तो दूसरी कलाई भी तोड़ दूंगा। उस कलाई में वाज़ेह वार्निंग थी। दबे दबे गुस्से से गुर्राते कहा था उसने और वो उसकी नज़रों में मौजूद वार्निंग और उसका गुस्सा दोनों देखकर चुप कर गई थी। 2 मिनट का हल्का सा मसाज किया था उसने, जिसमें वो वहाँ से देख सकता था कि मुफातिया ने दर्द की शिद्दत से अपनी आंखें बंद की थी। आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे। अरबाज ने जेब से पट्टी निकालकर अच्छे से उसकी कलाई पर बांधी थी और फिर दूसरे हाथ की पोंछ से उसके गालों पर बहते आंसू हाथ साफ किए थे। मुफातिया ने झट से आंखें खोली थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। उसे खुद पर भी गुस्सा आया था कि वो क्यों गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि अगले को तकलीफ दे जाता है। उम्मीद है उससे दर्द कम होगा, सुबह किसी हॉस्पिटल ले जाऊंगा, कहते वो उसे दूर हुआ था। जख्म देने वाले मसीहाई करते अच्छे नहीं लगते, मुफातिया ने तंज मारते कहा था, मगर मैं बहुत कम लोगों की मसीहाई करता हूँ, ये बात जहन में रखना। वो मजीद भी कुछ कहना चाहता मगर उसकी तकलीफ का अंदाज़ा करते बगैर कुछ कहे चला गया। वह आज मिस्टर अरबाज बगैर मुझे तमीज़ का भाषण दिए चले गया। स्ट्रेंज कहते। उसने तलख मुस्कुराहट सजाए अपने बैंडेज की तरफ देखा था और गीले बालों में बुरुश करती मुड़ी थी और सामने देखती शॉक्ड हुई थी। कैसी लगी एपिसोड? लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। क्या लगता है
مفاتن نے کیا دیکھا ہوگا. خوش رہیں، سلامت رہیں.